Good morning, dear students. Today's chapter is on education, meaning, concept, and nature, and its relation with other disciplines. Now, this is, I will say, a base, the main base of education. आप बीएड करने आए हैं और ये आपका ऐसा चैप्टर है, ऐसा बेसिक फंडामेंटल्स हैं जो हम आज एजुकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे. What is this concept of education? The term education is traced to very different sources of derivation. According to one view, education originated from the Latin word educare, which means to bring up or to nourish. ये लैटिन शब्द educare से लिया गया है जिसका कि मतलब है to nourish या to bring. ये जो लैटिन वर्ड education है, it has been derived from the Latin word educatum, which means the act of teaching or training. और ये शब्द education अपने आप में इस चीज को दर्शाता है कि इसका अर्थ है किस तरह से ट्रेन करना या उसको सिखाना. According to the Latin word educare and educatum, education is something external which is imposed from outside, or education means growth from within. Now you will find that this word education is relating to something coming from outside, but we find that education, this word actually means something that is already existing within, to put it out, to draw out. आप शिक्षा में देना, शिक्षा जिसे हम कहते हैं, एजुकेशन इज नॉट समथिंग जो कि आप बाहर से लाके किसी बच्चे के मस्तिष्क में कुछ डाल रहे हैं, ऐसा नहीं है. एजुकेशन इज अ वेरी you can say confusing word when you start talking about in terms of क्या इसका अर्थ है. इसका अर्थ है जो कुछ अंदर है, जो innate qualities है, उनको बाहर लाना, something to draw out rather than to put in. अभी हम बहुत सारी definitions को discuss करेंगे कि इनका अर्थ क्या है, इसके तहत क्या कहा है. So I come to the definition as given by Sri Aurobindo. Education is helping the growing soul to draw out that is in itself. जो व्यक्ति के स्वयं के अंदर है उसको draw out करके निकालना. He has talked about the drawing out that is in itself. We will be studying about these philosophers also in the coming few classes. महात्मा गांधी ने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि education is the all round drawing out of the best in child and man, body, mind and spirit. ये एक इतनी अहम डेफिनेशन है, इतनी महत्वपूर्ण डेफिनेशन मानी गई है कि इसमें कहा है कि एजुकेशन जो है that is relating to different aspects, relating to different points, where he says drawing out of the best child and man, चाहे वो बालक हो चाहे वो बड़ा हो, उस हर व्यक्ति के अंदर से उस चीज को बाहर निकालना. किसमें से? बॉडी में, माइंड में, स्पिरिट में, हर चीज में जिसे कहा जाएगा it is relating to different aspects but drawing out of the best. Then we come to the next definition as given by Rabindranath Tagore. ये बहुत ही famous आप कहेंगे हुए हैं, जिन्होंने philosopher हैं, he has been a great poet, great writer, and he has even written for freedom fighting. You all must be aware of this Bengal tiger that we talk about. And he said that making life in harmony with existence. Now, with harmony से क्या मतलब है? एक सामंजस्य बैठाने की बात करी है, समन्वय की बात करी है, मेल की बात करी है, different aspects in education की बात करी है. And he has talked about that different things in terms of education being passed on. And एक इन्होंने बहुत बढ़िया कोट है इनका, जो अक्सर कोट किया जाता है कि a lamp can never light another lamp unless it continues to burn its own flame. यानी कि टीचर के लिए कहा है कि टीचर जब तक वो स्वयं एक कहना चाहिए सीखने वाला नहीं बनकर रहेगी, तब तक वो दूसरों को नहीं सिखा सकती. So we have to be continuously in the process of learning,
continuously in the process of accumulating knowledge. Continue to burn the, आप किसी लैंप से दूसरे लैंप को जब जलाने चाहेंगे तो तभी संभव है जब आपकी लौ स्वयं जल रही हो. So that is what he has talked about, and it's a beautiful thing that he has said. Then we come to the another quotation given by Swami Vivekananda. Education is the manifestation of divine perfection already existence in man. ये जो उन्होंने कहा है, ये अक्सर कहा जाता है कि इसका अर्थ क्या है. It simply means education जो है वो एक already exist, सबने बात करी है already existing in man, which is continuously in there, which is innate, which is to bring it out, बाहर निकालने की बात करी है. So we will find that that is what they have talked. Now Rig Veda has talked about noble thoughts coming from every side. हर तरफ से, चारों ओर से जिस लॉ की रोशनी की बात करिए, जिस ज्ञान की बात करिए, जिस अच्छे विचारों की बात करी है, उनका कहना है वो चारों ओर से आ रहे हैं. Then he has talked about Upanishad, leading from the unreal to the real, from darkness to light, from death to immorality. Now you will find that he has talked about various aspects when he says कि उपनिषद में कहा गया है कि जो अनरियल है उससे रियल की ओर ले जाना, जहां अंधकार है वहां से रोशनी की ओर ले जाना, जो डेथ है वहां से अमर होने तक का जो सफर है उसकी बात उपनिषद में कही गई है, और यही शिक्षा है. See, there are different versions given by different people, different philosophies, different philosophers, Western philosophers, Indian philosophers, and all of it varies. Then Radhakrishnan has talked about education according to Indian tradition, which is not merely a means of earning a living, nor is it only a nursery of thought or a school of citizenship. It is initiation into the life of spirit and training of human souls in the pursuit of truth and the practice of virtue. ये जो राधा कृष्ण की दी हुई डेफिनेशन है एजुकेशन के बारे में, आप पाएंगे कि ये डेफिनेशन उन्होंने यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन ने भी इसको अपना लिया था और इसको कोट करा है in their saying. Then we come to definitions given of education by Western thinkers. Aristotle ने कहा है कि creation of a sound mind in a sound body. Sound mind in a sound body अपने आप में दर्शाता है कि शिक्षा वो है जो एक माइंड को भी और बॉडी को भी दोनों को साउंड रखती है. Then they have talked about John Dewey. ने डेफिनेशन कही है इंक्रीजिंग सोशल एफिशिएंसी. सोशल एफिशिएंसी को इंक्रीज करे वो शिक्षा है. सबका मतलब अलग है ऐसा नहीं है, सबका अर्थ लगभग एक है. कहने का तात्पर्य यह है कि शिक्षा को एक लाइफलाइन की तरह से माना गया है. शिक्षा वो है जो उस प्रकार की जानकारी देती है, ज्ञान देती है, जिससे बहुत सारे एस्पेक्ट्स, जिससे केंद्र खुलते हैं, जिससे आपकी आत्मा तक जाग जाए. Then John Locke has talked about attainment of sound mind in a sound body. Pestalozzi talks about natural, harmonious, and progressive development of man's innate powers. Again, we talk about man's innate powers. Then we come to Plato. He says, developing the body and the soul of all perfections which they are capable of. ये सारी चीजों की उन्होंने बात करी है. And he has talked about the various development which is required for a body, the soul which should be perfect, which is capable of. Then he has talked about, then the next definition here we are discussing is by Rousseau. He has again talked about development from within. Later on you'll be studying कि Rousseau जो थे वो एक naturalist philosopher माने गए हैं, जो प्रकृतिवाद को आगे बढ़ावा देते हैं, जो प्रकृतिवाद को मानने वालों में से रहे हैं. He has talked about back to nature. इनका कहना था कि डेवलपमेंट फ्रॉम विदिन, मनुष्य के अंदर भीतर जो डेवलपमेंट है, जो कुछ है वो अंदर है,
और जो कुछ चाहिए हमें शिक्षा देने के लिए वो हमें बाहर निकालना है. So he has talked about various types of development which is already existing within the person. Then we come to the next slide, that is a brief summarization of definitions. So you will find that the harmonious development they have talked about, which is balance of physical, intellectual, aesthetic, moral, social and spiritual development. ये जो development है वो हर प्रकार से एक सामंजस्य बैठाने वाला, बैलेंस बैठाने वाला, हार्मनी की बात करने वाला डेवलपमेंट की बात करी गई है. चाहे वो फिजिकल हो, चाहे वो इंटेलेक्चुअल हो, चाहे वो आत्मिक हो, चाहे वो भौतिक हो, चाहे वो नैतिकता की बात करे, सामाजिक की बात करे, आध्यात्मिक की बात करे, विकास पूर्ण होने की बात करी गई है. Then they have talked about responsibilities in the society towards parents, relatives, neighbors, friends, teacher, community and country. जो हमारी जिम्मेदारियां हैं, अगर हमें शिक्षा इस लायक ना बनाए कि हम अपनी जिम्मेदारियों को उठा सके, अपनी ड्यूटीज को सही तरीके से कर सके. हमारी ड्यूटी क्या है? हमारी ड्यूटी है, पहले सबसे पहले हम अपने बारे में सोचते हैं, इंडिविजुअल के बारे में सोचते हैं. ये बात सही है, इट्स परफेक्टली ऑल राइट. कहते हैं भूखे पेट न होए भजन गोपाला. इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ ये है कि जब तक आपका पेट नहीं भरा होगा आप दूसरी चीजें नहीं सोच पाएंगे. उसी तरह से जो शिक्षा है उसका कर्तव्य, सबसे बड़ी जो एक जिम्मेदारी है वो है अपने आप का पालन पोषण करना, अपने आप को सुरक्षित रखना और आपके पेरेंट्स को, आपके रिलेटिव्स, आपके नेबर्स, आपके फ्रेंड्स, टीचर्स, कम्युनिटी. आप नेक्स्ट स्टेज एक एक करके आगे बढ़ेंगे. पहले आप स्वयं का, फिर आपके अपनों का सोचेंगे, आप अपने बगल में रहने वाले नेबर्स का सोचेंगे, आपके फ्रेंड्स हैं, आपके टीचर्स हैं, आप किस कम्युनिटी में रहते हैं, किस समाज में रहते हैं, कौन सी सिटी, कौन से स्टेट में रहते हैं, कौन सी कंट्री में रहते हैं. ऑल योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज नीड टू बी फुलफिल्ड. कोई भी अगर एक जिम्मेदारी पूर्ण नहीं होती है तो वो शिक्षा आपकी ट्रू एजुकेशन नहीं कहलाती. Then we come to powers, the capacities, the capabilities, the potentialities and propensities. ये cognitive होते हैं, affective होते हैं, cognitive होते हैं and they reflect power of the individual. ये जो चीजें हैं बताई गई, किस प्रकार की पावर? पावर जो कैपेसिटीज को बढ़ाए, जो कैपेबिलिटी को बढ़ाए, जो हमारे कर सकने की क्षमताएं, जो हम क्या कर सकते हैं, क्या कर आगे अभी क्या कर रहे हैं और किस तरीके से हम उसको इम्प्रूव कर सकते हैं. चाहे वो हमारे मस्तिष्क से रिलेटेड हो, चाहे हमारे हैंड मूवमेंट्स, मोटर मूवमेंट से रिलेटेड हो, चाहे वो बिहेवियरल पैटर्न से रिलेटेड हो. ये सभी चीजों को जब हमारा बढ़ावा देती है, बेहतर करती है, तो ये रिफ्लेक्ट करती है हमारे पैटर्न को. पावर्स ऑफ द इंडिविजुअल की बात करिए. Then we are discussing about the merging of individual self with the universal self. एजुकेशन का एक और अहम पहलू है, अक्सर आप आगे पाएंगे जब आप इज्म्स को पढ़ेंगे, दैट इज सेल्फ रियलाइजेशन, लिबरेशन, अटेनमेंट ऑफ सुप्रीम ब्लिस एंड मोक्ष या मुक्ति जिसे आप कहते हैं. Now, it may sound as something more out of the, you can say, आध्यात्मिक चीजों की बात, या जो कि आप कहेंगे कि कोई प्रवचन, but that is not so. We are talking about the aims of education, and aims के तहत जो importance hold करता है, that is self-realization, that is liberation, that is related to किस प्रकार से शिक्षा लिबरेट कर सकती है, मोटिवेट कर सकती है, किस प्रकार से हमें परम सुख या परम चीजों को, जिनको हम और भी अधिक पाना चाहते हैं, जो इस दुनियावी चीजें से ऊपर है. रियलाइजेशन ऑफ सेल्फ कब संभव है? जब आप गॉड को रियलाइज, हम अक्सर बात करते हैं रियलाइजेशन ऑफ गॉड, गॉड तक पहुंचने की बात तो तब आएगी जब आप स्वयं को पहुंचाएंगे. we are going to discuss about education, about philosophy, and then you will realize that we are talking about realization of self.
और ये लिबरेशन, ये सुप्रीम ब्लिस जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये मोक्ष तभी संभव है जब हम स्वयं को जानेंगे. How many of us do we try to understand our own self? Then we come to the next point, that is again narrow meaning of education. तो इसको मैकेंजी ने कहा है, in the narrow sense it means to any conscious directed effort to develop and cultivate the powers. Now this is simply not the narrow meaning that we are restricting ourselves to. Education is much more than the narrow meaning of accumulating degrees, of getting marks, of studying particular subjects, of passing on the information. It is not just knowledge, it is not just information, it is not instructions, it is not passing, learning certain books and chapters and mugging it up and by rote learning and passing it on and writing it down in the examinations, getting good marks and degrees. No, it is much, much, much more than that. Mahatma Gandhi has said that literacy is totally different from education. साक्षरता ना कहिए, साक्षरता शिक्षा से भिन्न है. महात्मा गांधी का कहना था, साक्षर तो आप बना सकते हैं मगर शिक्षित बनाना कठिन है. We talk about so many people जो कहते हैं कि पढ़े लिखे गंवार, आपने सुना होगा, पढ़े लिखे जाहिल. क्या होते हैं पढ़े लिखे जाहिल? हमारे समाज में, हम आपके बीच में ही होते हैं. They might be very educated. आप देखिएगा तो वहाँ पे जजेस हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, टीचर्स हैं, लॉयर्स हैं, बट इन देयर फैमिलीज. मगर अब शादी के लिए वो जाते हैं और दहेज की मांग करते हैं. दे डिफरेंशिएट बिटवीन बॉयज एंड गर्ल्स, जेंडर डिफरेंस को मान्यता देते हैं. गरीब और अमीर की बात होती है, मनी की इंपॉर्टेंस मानते हैं, करप्शन से कोई मतलब नहीं. व्हाट इज दिस? सही और गलत की पहचान करना बंद करते हैं. दैट कॉन्शियस डजंट लिव. सो दैट इज नॉट ट्रू एजुकेशन. वो सिर्फ डिग्री एक्यूमुलेशन है, उसको शिक्षा से नहीं तोला जा सकता. एजुकेशन इज इम्पार्टेड इन अ प्लान इंस्टीट्यूशन लाइक स्कूल. इट इज डेलिब्रेट, इट इज कॉन्शियस, इट इज सिस्टमैटिक, इट इज इंटेंशनल एंड नॉन इंसिडेंटल. ये नैरो मीनिंग है जब हम केवल स्कूल में प्राप्त की हुई शिक्षा की बात करते हैं. Next we come to the broader meaning of education. Now broader meaning means it is related to the various aspects of education. ये various aspects क्या हैं? The process of education, as we all know, is a lifelong process. It begins from birth to death, from womb to grave. आपने पहले भी सुना होगा कि अभिमन्यु जब अपनी माँ की कोख में थे तभी उन्होंने सीख लिया था कि किस प्रकार से चक्रव्यूह में घुसते हैं. यानी कि वूम्ब में भी लर्निंग हो रही थी. इट इंक्लूड्स एक्सपीरियंसेस gained from formal and informal agencies of education. आप फॉर्मल एजुकेशन पढ़ेंगे, अभी इनफॉर्मल एजुकेशन पढ़ेंगे, डिफरेंट एजेंसीज के बारे में जानेंगे कि शिक्षा कहाँ से संभव है, कहाँ से प्राप्त होती है. आपको पता भी नहीं चलता है वो आप शिक्षा मिल रही है, आपको ज्ञान होता जाता है. So all those aspects are relating to different aspects and help you to learn. And all those learnings help in understanding of various aspects. So we also receive education without even being aware. आप कहीं अपने बड़ों के साथ में बैठे हैं, कोई बात हुई, कोई knowledge मिली, कोई जानकारी हुई, और what happens? You automatically come to receive certain education. Education is all experiences, and all experiences are educative in nature, are educative in temperament. So we must learn to accept that this is all education. Now, what are the salient features of characteristics of education? Education is a lifelong process, जैसे हमने भी पढ़ा. जॉन एडम्स ने कहा कि एजुकेशन एक बाइपोलर प्रोसेस है, निरंतर चलने वाली आजीवन प्रक्रिया है. बाइपोलर प्रोसेस है, द्विमुखी प्रक्रिया बताया गया है. उसके दो पोल्स या टू पोल्स, व्हाट आर दे? फर्स्ट इज द टीचर, द सेकंड इज द स्टूडेंट. और एजुकेशन इनका बीच का कड़ी है.
जो एजुकेशन या more knowledgeable person passes on to the less knowledgeable person, that is education. It is a bipolar process as has been passed on. Next is education is a tripolar process. Tripolar process क्या होता है? That is an education, इसमें टीचर और स्टूडेंट के साथ साथ एनवायरमेंट भी इन्वॉल्व है, और इसके बीच की प्रक्रिया जो है या एक जो जोड़ता है, जो कड़ी है, वो है शिक्षा. Next, I come to the education is a purposeful activity. ये purposeful activity क्या है? एजुकेशन एक पर्पसफुल एक्टिविटी से अर्थ है कि एजुकेशन का पर्पस है, उसका कुछ सल्यूशन निकलता है, उसका कोई कारण है, उससे बहुत पॉजिटिव चीजें निकल के आती हैं होपफुली. एजुकेशन इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, एजुकेशन इज अ डेलिब्रेटिव प्रोसेस. एफर्ट किया जाता है डेलिब्रेटली, तब वो शिक्षा ग्रहण हो पाती है. कुछ शिक्षाएं आप पाएंगे जो इनफॉर्मल तरीके से होती हैं, that is not deliberate. Then education is a psychological process. Education एक साइकोलॉजिकल प्रक्रिया है, मनोवैज्ञानिक तरीके से सीखते हैं. Education is a sociological process. It means education जो है, शिक्षा जो है, वो एक सामाजिक प्रक्रिया है. और education is a dynamic process, बहुत ही एक्टिव, बहुत ही कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्टिव होना, लगातार होना, निरंतर होना, इसका अभिन्न अंग है. एजुकेशन इज अ चाइल्ड सेंटर्ड प्रोसेस. चाइल्ड सेंटर्ड प्रोसेस मींस पिवट, या जो एक जिसे एक टिप जिसे कहते हैं, जो कि मेन सेंटर है, वो चाइल्ड है. सारी प्रक्रिया व्यर्थ है यदि चाइल्ड तक वो प्रोसेस की इफेक्टिवनेस या उसके जो गुण हैं, उसकी जो प्रक्रिया के दौरान वो उस तक नहीं पहुंचते, तो वो बेकार है, वो व्यर्थ है. सो दैट इज व्हाट दे टॉक अबाउट द एजुकेशन बीइंग द चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन. और चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की जब हम बात करेंगे तो टीचर इंपॉर्टेंट ना होकर के चाइल्ड इंपॉर्टेंट है. Child important means he needs, and according to the needs and importance and capability of the child, education should be taught. बच्चा क्या विषय पढ़ना चाहता है, कैसे पढ़ना चाहता है, किस तरीके से पढ़ना चाहता है, उसको कौन से विषयों का ज्ञान उसको पसंद है, किस तरीके से दिया जाना. आप देखिए छोटे बच्चे जब होते हैं, आई रिमेम्बर ऑन an incident when a child was my son was very small, and I remember he went to school, and when I had gone just to pay fees, मैं देने गई हुई थी, और जब बात टीचर से हुई तो मैंने देखा कि मेरा बच्चा तो अलग टहल रहा है. मैंने उनसे पूछा कि ये, उन्होंने कहा नहीं, he has finished his work. This, it is basically child centered and child oriented schools जो होते हैं, they say it is exams conduct कराते हैं आजकल बच्चे, और कहते हैं बच्चों के, और कहते हैं कि जो बच्चा छोटे से छोटे बच्चे 3 साल 4 साल, उनको कोई एग्जाम की जरूरत नहीं होती है. It is just that learning is happening, and how that learning should be passed on, and to just assess whether the teacher has been able to pass on that information or not. What the child centered schools do these days is कि वो बच्चों को जानकारी देते हैं, और जो बच्चों से ने क्या समझा है जानने के लिए, उनका कोई पर्टिकुलर एग्जाम न रख करके उनके लर्निंग को असेस करते हैं, जस्ट इन अ प्ले वे मेथड. Learning by doing, learning by activity, these are all child centered processes. And अगर आप पहले की बात करिए, आज से 20 साल पहले, 30 साल पहले, 10 साल पहले, तो धीरे धीरे चेंजेस अकर कर रहे हैं हमारे समाज में, and these schools are changing. Education is an all-round development of personality. Now I come to functions of education in human life. What kind of situations, what kind of, you would say, are required? How can a human life be impacted by education? किस तरीके से इम्पैक्ट छोड़ती है, या क्या रोल है एजुकेशन का ह्यूमन लाइफ में? तो सबसे पहली बात है कि मैन को सिविलाइज्ड बनाना शिक्षा का काम है. हम सब शिक्षा की वजह से सभ्य तरीके से समाज में मूव करते हैं. We realize, supposing you are sitting in the class and you feel hungry, the teacher is teaching, you will not take out your tiffin and start eating automatically.
You will wait for the recess to happen. You will wait for the recess to be there before you begin eating food. Agar aapko washroom jana hai, you will be asking the teacher concern. So that is how it is the satisfaction of the needs and civilization of a man, the adaptation to environment. हर चीज के लिए मनुष्य अपने आप में चेंजेस लाता है, या तो अडेप्ट करता है एनवायरनमेंट को, या फिर अपने एनवायरनमेंट को ही मॉडिफाई कर लेता है. बोथ आर रिक्वायर्ड. पूरा अपने आप को एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अडेप्ट करना भी संभव नहीं है, और पूरी तरीके से एनवायरनमेंट को मॉडिफाई करना भी संभव नहीं है. सो इट इज इम्पोर्टेंट दैट दिस adaptation to environment and modification of environment must occur, and it can occur only by education. Now, development of character and development of individuality is also important. शिक्षा का अर्थ होता है कि हर व्यक्ति अपना एहसास कर सके कि वो एक इंडिविजुअल है, उसकी कोई अहमियत है, अपने एहसास कर पाना. आजकल आप पाते हैं कि there is a lot of awareness around us. People are understanding, movies are being made on a person's individual, to understand the individuality, to understand the difference between various aspects. अपने character को भी, you must have heard the saying that character is the most important. So character को हम कभी भी चरित्र का निर्माण कैसे हो, इसके लिए विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद ने भी कहा है कि चरित्र का निर्माण बालक के लिए सबसे अहम होना चाहिए. सो प्रिपरेशन फॉर, अगर आपकी शिक्षा आपको आने वाले जीवन के लिए तैयार नहीं कर पाती, तो आपकी शिक्षा व्यर्थ है. इट इज ऑफ नो यूज. सो एजुकेशन शुड ऑटोमेटिकली डेवलप द इंडिविजुअल एंड प्रिपेयर हिम फॉर कमिंग लाइफ. आने वाले जीवन की प्रत्येक परेशानियां, प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं करना सिखा सकते हैं, लेकिन उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के अंदाज को समझ सकते हैं, उसके टैक्ट को सीख सकते हैं, उस नैक को समझ सकते हैं कि हम शिक्षा, कि हम जीवन की आई परेशानी को कैसे सुलझाएंगे. सो द प्रिपरेशन फॉर लाइफ मीन्स हाउ टू प्रिपेयर oneself फॉर कमिंग प्रॉब्लम्स इन लाइफ. हाउ टू क्रिएट a good citizen, a good human being is exceptionally important. So व्यक्ति को कैसे एक अच्छा नागरिक बनना है, अच्छा देशवासी बनना है, ये भी हमें शिक्षा सिखाती है. To have practical knowledge for various spheres of work. जो व्यक्ति के आम जिंदगी में जो प्रैक्टिकल नॉलेज है, उसका आना जरूरी है. केवल किताबी कीड़ा होने से जीवन में परेशानियां सॉल्व नहीं होती हैं. एजुकेशन का पर्पस है कि हमारी आम जिंदगी, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में आई हुई परेशानियां, प्रॉब्लम्स, सिचुएशंस को हैंडल करना, प्रैक्टिकल नॉलेज का होना, समझदारी आना is very important. So that is promotion of social efficiency, which it has been talked about. Then the general functions of education, the progressive development of innate powers, that is जो अंदर है उन चीजों को बाहर निकालना, उसको सामने लाना, ताकि डेवलपमेंट ज्यादा बेहतर हो सके. ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी, जो व्यक्ति के डेवलपमेंट की पर्सनालिटी डेवलप करना है, उसमें पूर्ण विकास होना, ग्रो करना एज ए ह्यूमन बीइंग. टू कंट्रोल, रीडायरेक्ट एंड सब्लिमेशन ऑफ इंस्टिंक्ट्स. अपने इंस्टिंक्ट्स को अगर हम कंट्रोल नहीं करते, उनको रीडायरेक्ट नहीं करते, सब्लिमेशन ऑफ इंस्टिंक्ट्स नहीं होते, तो एजुकेशन हमारी पूर्ण नहीं है. इट इज नॉट ट्रू एजुकेशन देन, बट एंड वी हैव टू एम एट गेटिंग ट्रू एजुकेशन. Then we talk about character building and moral development. जो character building है या moral development है, वो करने के लिए शिक्षा सही तरीके से, सही मायने में बच्चों तक पहुंचनी चाहिए. बच्चों को ये बताना, ये आप केवल कहने से ओरली नहीं होता है. You have to prove to be a good ideal as a teacher, as a human being, as an elder, as a family member for the children, ताकि उनका कैरेक्टर बिल्डिंग हो. उन्हें अच्छे लीडर्स की कहानियां सुनाना, ब्रेव लोगों की, अच्छे लोगों की, उनका मॉरल डेवलपमेंट करना. टू क्रिएट गुड सिटीजन्स ऑफ द कंट्री, to create good citizens of the country, awakening of social feelings, सामाजिक प्रक्रिया, सामाजिक भावनाएं,
लोगों के प्रति वी फीलिंग का आना कि हम सोसाइटी का एक अंग है, समाज का अंग है. आई एम ऑल्सो पार्ट ऑफ द सोसाइटी. आई एम वन ऑफ द पर्सन्स in the living in the society, and to realize that the problems that others are facing, उनके संग sympathy केवल होना sufficient नहीं है. What is required is empathy also. Then preparedness of culture and civilization. Culture and civilization से अर्थ है कि जो हमारा समाज है, जो हमारा कल्चर है, जो सिविलाइजेशन है, उन सब की धरोहर को संभाल के रखना, संजोना, उसको पास ऑन करना आगे की जनरेशन को, टू प्रिजर्व, टू प्रमोट and to transmit that civilization, that culture. That is what the role of education is. Then the social reforms. हम social changes की बात करते हैं, समाज में आए हुए परिवर्तन की बात करते हैं, और ये सारे परिवर्तन समाज में social reforms के माध्यम से आते हैं, और social reforms education के कारण आती हैं. अगर शिक्षित नहीं होंगे तो हम उन चीजों के बारे में नहीं जान पाएंगे. शिक्षा बहुत सारे चेंजेस लाती है, बहुत सारे परिवर्तन लाती है. जो आज से 50 साल पहले आपके पेरेंट्स करते थे, वो आज आप नहीं कर रहे हैं, और आज से आने वाले 20-25 साल बाद, 30 साल बाद आपके अगली जनरेशन नहीं करेगी. So what is all that? When I remember of the time when जब पहले गैस नहीं होती थी, ये जो आप गैस का सिलेंडर, गैस चूल्हा आप जानते हैं, जिसपे कुकिंग गैस की बात कर रहे हैं, और उस समय जला करके अंगीठी जलाई जाती थी, चूल्हा जलाया जाता था. और जब नया जब गैस के सिलेंडर आए, आई नो ऑफ पीपल जहाँ पे ये कहा गया कि भाई गैस पे बनी हुई रोटी तो नहीं खाएंगे, बिकॉज दैट इज गोइंग टू हार्म आवर स्टमक. तो लेकिन सब परिवर्तन आया, चेंजेस अकर किए, सोशल रिफॉर्म्स अकर करते हैं. बहुत सारे सोशल रिफॉर्मर्स हुए जिन्होंने एजुकेशन के माध्यम से, वन ऑफ द वेरी फेमस एंड मोस्ट रेनाउंड सोशल रिफॉर्मर आई एम श्योर यू मस्ट बी नोइंग, वो हैं डॉक्टर राजा राम मोहन रॉय. उन्होंने परिवर्तन लाया, सती प्रथा हटाई, दहेज को हटाया. तो बहुत सारी ये जो चेंजेस अकर किए, ये शिक्षा के कारण हुए, और इसकी वजह से समाज में परिवर्तन आया, समाज में रिफॉर्म्स हुए, चेंजेस आए. और नेशनल सिक्योरिटी, बहुत सारी टेक्नोलॉजी के कारण परिवर्तन आना, नेशनल सिक्योरिटी के कारण, ऑल दोज इम्पैक्ट द जनरल नीड्स. Then I come to functions of education in national life. For national life to be possible, it is essential that its members have common traditions, interests, unity, and the main function of education national life are training for leadership. कितनी सारी चीजें ऐसी होती हैं जिसमें हमें लोगों को इस प्रकार से ट्रेन करना होता है कि we need leaders. अगर हम बैक सीट ले लेंगे, अगर लेट बैक एटीट्यूड रखेंगे, तो जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे. और हम सब में वो लीडर जिंदा होना चाहिए, हम सब में वो मोटिवेशनल हैबिट होनी चाहिए, बिकॉज वी आर citizens of this country. We are proud Indians, and how we can promote nationality, we need to be good leaders and we need training for that. और ये हमें शिक्षा देती है, education हमें promote करती है how to become good leaders, and it trains us. Then consciousness of duties. हम सभी जानते हैं कि किसको अच्छी नहीं लगते rights क्या हैं. Everyone likes to know about their rights. ये हमारा अधिकार है, ये हमारा राइट है, मगर हमारी ड्यूटीज क्या हैं? डू वी एवर बॉदर कि हमारी ड्यूटी क्या है? इट इज नाइस टू नो अबाउट राइट्स, बट इट इज आल्सो इम्पोर्टेंट टू नो अबाउट ड्यूटीज, बिकॉज राइट्स एंड ड्यूटीज गो हैंड इन हैंड. सप्लाई ऑफ स्किल्ड वर्कर्स. शिक्षा के कारण आप वर्कर्स में स्किल्ड लेबर का होना ज्यादा संभव होता है. जब शिक्षित होंगे तो उनको अपने हुनर के बारे में और बेहतर और अच्छा पता होगा, वो स्किल को ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे. देन सप्लाई ऑफ स्किल लेबर के बाद में नेशनल डेवलपमेंट. किस प्रकार से देश का विकास हो सकता है, इसमें हर व्यक्ति शिक्षित हो, तभी
हमारे देश का विकास हो सकता है. There was a time when Swami Vivekanand had said in his quotations, one of the quotations, कि जब हर व्यक्ति एजुकेटेड होगा, हर महिला एजुकेटेड होगी, हर माँ एजुकेटेड होगी, तभी सारे बच्चे एजुकेटेड होंगे और तभी हमारे देश का विकास होगा. At that time India was not free, freedom was not there. इसीलिए वो फ्रीडम के लिए सबसे पहल उन्होंने जो करी थी वो शिक्षा की पहल करी थी. Then we come to national integration. National integration means सब में यूनिटी का होना. वी नो इंडिया इज अ वेरी डाइवर्स कंट्री. चाहे वो आप लेवल ले लीजिए, एट ज्योग्राफिकल लेवल, हिस्टोरिकल लेवल, पॉलिटिकल लेवल, भाषाएं हैं, इतनी भिन्न भाषाएं, इतने भिन्न खाने, रहन सहन, पहनावा, सब कुछ भिन्न है, लेकिन फिर भी we are all united, and education helps to understand that feeling of integration and binds us together और हमें एक बनाने में सार्थक होती है. Then we talk about the national interest, priority of national interest. हमारे national interest की जो priority है वो हमेशा अहम रहेगी. इंडिविजुअल से ज्यादा, सोसाइटी से ज्यादा, कम्युनिटी से ज्यादा, सिटी और स्टेट डिस्ट्रिक्ट से ज्यादा इम्पोर्टेंट है नेशन. उससे बड़ा, उससे इम्पोर्टेंट, उससे सर्वोपरि कभी नहीं हो सकता. आई एम श्योर आप कभी अपने क्लासेस की याद करते होंगे जब आप अपने स्कूल में पढ़ते थे और वहाँ स्कूल में किसी फंक्शन के दौरान या आप कभी अभी भी अगर आप कभी सुनते होंगे नेशनल एंथम तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं. इट गिव्स यू गूज़बम्प्स. ये जो अंदर से आपको एहसास है, नेशनल फीलिंग देता है, प्राइड की फीलिंग देता है, मेरा देश, मेरी कंट्री, मेरा, that is so naturally the national interest is more important than the individual interest. और इस बात का एहसास दिलाने के लिए भी शिक्षा important है. Then promotion of social efficiency is very important, and that is passing on to the हर चीज की efficiency के लिए, growth के लिए जो important है, that is social efficiency. So true education is one which brings about harmonious development in a child. It draws out the best from within. It grooms and modifies our behavior. Now, एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगी before I end my class today. That is, education is related to all the fields, all the disciplines, all the subjects. हम वास्तविक रूप में शिक्षा की अगर हम बात करते हैं तो वो प्रत्येक पहलू से जीवन के जुड़ा हुआ है. हमें हर पल, हर क्षण शिक्षा देता है और एजुकेशन हर चीज से लिंक करता है, चाहे वो साइंस हो, चाहे वो आर्ट्स हो, चाहे वो कॉमर्स हो, चाहे वो कोई और विषय हो. Everything is related and integrated, and it is required, it is intertwined, and it is important that we relate to it. हमारी पर्सनालिटी को ग्रूम करने के लिए शिक्षा का अहम भूमिका है. इसीलिए बार बार ऑर्गेनाइजेशंस, चाहे नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हो, चाहे गवर्नमेंट हो, बेसिक एजुकेशन की स्थापना की गई हो, हर चीज में एजुकेशन की बात करी गई है. लेकिन वी मस्ट रिमेम्बर दैट वी डू नॉट एंड अप बिकमिंग, जो हमने आपसे कहा, एक जुमला कहा था, पढ़े लिखे गंवार या पढ़े लिखे जाहिल. हमें वो नहीं बनना है. हमें ट्रू एजुकेशन की बात करनी है. एजुकेशन which will bring and mold our behavior, which will bring about a harmonious development, which will train us into better human beings, which will help not one but all, which will help us as an individual, which will help us as you can say the best possible manner, a good national citizen of our country. So with that hope, I end my class today. Thank you, dear students, for listening to my class. Thank you so much. Thank you, dear students. Wish you all the best.